वेलकम टू कॉफी विद शेयर गुरु। हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ और हमारे गेस्ट के साथ। वेलकम टू द शो मिस्टर राकेश जोशी। थैंक यू रुचि। राकेश जी, हमने पिछली बार बहुत बारीकियों में जाना था कि साइकोलॉजी किस तरह से रोल प्ले करती है, और भी कुछ सवाल है ट्रेडर्स को लेकर और साइकोलॉजी को लेकर, क्योंकि बहुत बार हम जो मेन मुद्दा होता है, जो एक साइकोलॉजी जो रोल प्ले करती है जब भी कोई ट्रेडर मार्केट में आता है, वो मिस कर जाता है। तो आज का मेरा पहला सवाल है आपसे, इफ साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग इज सो इम्पोर्टेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ इंटेलिजेंस इन स्टॉक मार्केट? Oh, that's really interesting question, Ruchi. We can never undermine the importance of intelligence, because market keeps flashing data all the time. We need to make sense out of it. Every time we need to make some decision. कि market की volatility के साथ में we need to take some action also, right? So your success in the trading depends on your intellectual ability to analyze the market. But important thing, but you must know what kind of intelligence you have. I'm not talking about higher intelligence or lower intelligence, just the type of intelligence. Fundamentally, there are two types of intelligence. One is vertical and another is horizontal. I'll give you some example also. But before that, in vertical intelligence, you have very in-depth knowledge. You try to go into the depth of the subject. Whereas in case of horizontal thing, you have so many different disciplines. You keep on testing so many different subjects. For example, मेरी और मेरे partner की बात करें, तो I am a horizontal thinker. I read a lot. I have very different sources of information, and I can relate to many different informations also. For example, Joe Biden, when he became American president, so he announced that he is going to invest heavily in infrastructure of America. So one can really make sense out of it that तो फिर स्टील सेक्टर चलेगा, और उससे एक स्टेप आगे कि अगर स्टील सेक्टर चलेगा तो इंडिया की काफी बैंकों, स्पेशली नेशनलाइज बैंक्स के काफी एनपीए फंसे हुए हैं स्टील सेक्टर में, तो विल दे हैव सम बेनिफिट. और दिस इज हाउ आई कैन गो इनटू द डेप्थ. आई मीन आई कैन also relate currency market, commodity market. I can also jump onto fundamental analysis and technical analysis. So I can do analysis of different stock at a time. Whereas my partner, and because of that, I am a very good stock trader. Whereas my partner Asit Bhai, he is a very deep thinker, a vertical thinker. Option में उसको जो grip है, he knows each and everything of option. But he has restricted himself to only index option and specifically Nifty, Bank Nifty का. तो he knows each and every, उसका गामा क्या है, थीटा क्या है, वेगा क्या है. Is it a right time to go short on theta? जो हम normally जो traders call and put बेचते रहते हैं, but he exactly knows whether this is the right time, this is the right level of selling theta. So this is how our intellectual ability to either comprehend so many different things or to go into the depth of a single thing. तो आपको भी अगर ये ख्याल है कि आपका इंटेलिजेंस का क्या लेवल है, तो you can take similar pattern and you can do that type of trading. So intelligence is important, but you can't be unaware of the type of intelligence you have. जी राकेश जी, मेरा अगला सवाल ट्रेडर्स के ऊपर है। जब भी कोई ट्रेडर कोई मेथड चूज करता है, तो उसे अपना सिलेक्शन कैसे करना चाहिए? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि लोगों को तो जो मेथड में प्रॉफिट दिखता है वो मेथड सिलेक्ट कर लेते हैं. किसी ने बोला कि ये मेथड में मैं अच्छा कमाया हूं, तो पीपल वुड नॉर्मली कॉपी दैट. बट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि वेदर दैट मेथड इज गोइंग टू बी सुटेबल फॉर मी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जैसे अभी मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल थिंकर बताया, ऐसे ही एक दूसरा है कि देयर कैन बी अ फास्ट थिंकर एंड स्लो थिंकर. काफी लोग होते हैं कि वो बहुत छोटे टाइम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं. कि फॉर एग्जांपल पर्सनली मेरी बात करूँ तो आई कैन कॉम्प्रिहेंड सो मेनी डिफरेंट थिंग एट अ टाइम.
थोड़े टाइम पहले की ही बात है, जब हिंदुस्तान बजाज जो शुगर का स्टॉक है, इट वाज ब्रेकिंग आउट ऑफ एक सम पैटर्न, तो वी थॉट कि शुड वी बाय दिस। तो बहुत सारे फैक्टर एक साथ में कंसिडर करना पड़ता है कि कुछ टाइम पहले हमें पता था कि शुगर प्रोड्यूसिंग कंपनी क्यूबा वगैरह में वेदर फेलियर के कारण क्रॉप फेल है। दूसरा कि यहाँ पर एथेनॉल की पॉलिसी भी बहुत अच्छी गवर्नमेंट ने फेवरेबल बनाई है, और एट द सेम टाइम सो मेनी अदर शुगर स्टॉक वर आल्सो मेकिंग न्यू हाई। तो नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इफ बजाज हिंदुस्तान इज आल्सो मेकिंग न्यू हाई ऑफ द डे, तो आई गेस कि इट इज वर्थ बाइंग। और उसके साथ में कौन से कितने बायर सेलर है, एट द सेम टाइम नंबर ऑफ अप टिक वर्सेस डाउन टिक, तो ऐसा एक साथ में मैं देख लेता हूँ। तो आई एम अ वेरी फास्ट थिंकर, तो इसीलिए फॉर मी सिलेक्टिंग अ स्टॉक बिकम्स इजियर। वो सबके लिए जरूरी नहीं है, और काफी लोग स्लो थिंकर होते हैं, और जो स्लो थिंकर होते हैं वो मेरी तरह इंट्राडे ट्रेडिंग में शायद ही सक्सेसफुल हो सकते हैं, बट दे आर वेरी गुड एट फंडामेंटल एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि उनको एक अच्छा सा टाइम चाहिए, लेकिन वो टाइम में वो एक अच्छे स्टॉक को बहुत डिटेल में कर पाते हैं। तो वो लोग फंडामेंटल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में काफी अच्छा कर सकते हैं। तो ये एक चीज मैंने बताई कि अगर आपके लिए कोई बंदा इंट्राडे मेथड देता है और इफ यू आर अ स्लो थिंकर, तो यू शुड नॉट गो फॉर दैट। दूसरी एक चीज ये भी है साथ में कि योर ओन पर्सनालिटी। पर्सनली मेरी बात करूँ तो आई एम अ ब्रेकआउट काइंड ऑफ पर्सन, कि जैसे ही कोई स्टॉक नया ब्रेकआउट करता है, तो आई थिंक यस दिस इज समथिंग, अ मूव हैज बिगन, तो आई वांट टू पार्टिसिपेट। और वर्सेस देयर आर सो मेनी पीपल कि जो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं सपोर्ट जोन में आएगा, एक डिमांड जोन में आएगा तभी मैं बाय करूंगा। तो एक दूसरा भी चीज है कि कुछ डायरेक्शनल ट्रेडर होते हैं जिसको बाय हाई और सेल हायर वाली मेथड में इंटरेस्ट होता है, जो मेरी टाइप है। आई ऑलवेज वुड लाइक टू बाय हाई एंड सेल हायर, वर्सेस काफी लोग होते हैं जिनको बाय लो एंड सेल हाई वाली चीज में होता है, जो फंडामेंटली डिमांड जोन सप्लाई जोन के है। तो जब तक आपको अपनी पर्सनालिटी टाइप भी नहीं पता होती है, तो अभी मेरे जैसे बंदे को आप बताओगे कि नहीं भैया वेट करो डिमांड जोन में आएगा तब बाय करो, तो मुझे कभी फंडामेंटल चीज पसंद नहीं आएगी ऐसी। So this is how you must know कि what kind of method is going to be suitable for you. जी राकेश जी, जैसे आपने एक स्लो थिंकर और एक फास्ट थिंकर का फर्क बताया है। आई थिंक स्लो थिंकर और फास्ट थिंकर डिसीजन मेकिंग में देर लगाते हैं, और फास्ट थिंकर अपना डिसीजन लेकर एग्जिट कर जाता होगा स्टॉक में से। ट्रू, तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है। तो आज हमने बहुत ही अच्छी बात समझी है राकेश जी से कि एक स्लो थिंकर और फास्ट थिंकर का भी बहुत एक जमीन आसमान का फर्क होता है, और वही आपको एहसास दिलाता है कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप बने रहिए कॉफी विद शेयर गुरु पे हमारे साथ, हम और भी चर्चा जारी रखेंगे साइकोलॉजी पर राकेश जी के साथ। राकेश जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस शो। बहुत ही अच्छा लगता है राकेश जी, बहुत चीजें हम जान रहे हैं जो आज तक सिर्फ मुनाफा और फायदे पे ही बात करते थे, पर आज हम पहली बार इन डेप्थ बात कर रहे हैं हमारे ऑडियंस के लिए। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन दिस शो विद अस। और आपका कोई भी सवाल है, आपका किसी भी तरीके का सवाल है साइकोलॉजी को लेकर, तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9833129445 पर। Please like us and keep सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, ताकि आप कोई भी अलर्ट मिस ना कर पाए। जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको अलर्ट जरूर मिलेगी अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।